Okay, ठीक है. Thanks. So hope you all are fit and fine in this pandemic of coronavirus, and you might be enjoying at home. So I welcome you all on the behalf of Genesis classes and the Gurukul Kurukshetra for being here in this webinar. So I am Gaurav Serawat, and I am from Palwal district of Haryana, and I passed my 12th class in 2019 from Gurukul Kurukshetra, and I cleared my SSB in 2020 on the 6th March. The entry was technical entry scheme, that is TES. So I thank you, Gurukul and the Genesis, for giving me this. So basically, the today's speech is, it is divided in some categories. Basically, we have short time, so I have divided this in some categories. So first category, those candidates who are going for the NDA exam on this 6th September. Genesis classes in the Gurukul Kurukshetra is wishing them all very good luck with them, and hopefully you will do best, and just chill during the exam and you will make it surely. So यहाँ पर कुछ tips हैं. There are tips and techniques for the clearing the written examination. So those who are they are passing the chats right now, please do not, because after sometimes we will have a chatting session. So hopefully you will listen it carefully. I'll be asking you your questions later and we solving your doubts. So please. So देखो, दो कैटेगरी हैं कि एक तो होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेरी थोरोली, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, पूरी नॉलेज है, अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है. एक तो कैटेगरी वो. दूसरे होते हैं एवरेज बच्चे जो ठीक होते हैं पढ़ाई में और मेहनत करते हैं. तीसरे होते हैं बिलो एवरेज, जो पढ़ाई में थोड़े कम होते हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं. समटाइम्स दे डोंट गेट देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. सो पहले तो एक बात सबके लिए कि एनडीए एग्जाम इज ऑल अबाउट द टाइमिंग्स. द एनडीए प्लेज विद यू विद द टाइमिंग. तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत सीरियस रोल है एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में. होता क्या है कि देखो, तुम प्रेशराइज हो जाते हो चीजों के ना. यू गेट प्रेशराइज्ड अंडर कि इफ आई वांट एबल टू मेक आउट दिस एनडीए एग्जाम, देन व्हाट विल हैपन टू मी. मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे. सो नथिंग. इन क्वेश्चंस को ना, इन डाउट्स को तुम अपने अंदर से निकाल दो. सो देन ओनली यू आर मेक इट ओके, गोइंग टू मेक इट द एनडीए एग्जाम. पहला सीन क्या होता है कि एक टाइम होता है कि भाई 2.5 घंटे मैथ्स के इतने क्वेश्चन करने. सर ने कहा था कि पूरे अटेम्प्ट करना, ओके, और मेरे से इतने उपाय हैं यार, मेरे तो स्पीड बहुत स्लो, 1 घंटा हो गया 30 क्वेश्चन कर पाए. सो दीज आर द सिली डाउट्स यू शुड नॉट बी हैविंग. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ प्रेशराइज, दे मेक यू very less effective during exam, so which should not be there. Second thing comes your preparation, obviously. How you have prepared or how much you have prepared, so it matters actually. So for the intelligent student, those who comes in the category of intelligent, you all know, you all might be intelligent, I am not saying, and don't mind it, I am not saying personally to everyone. So इनको एटलीस्ट 90 क्वेश्चन एटलीस्ट बता रहा हूँ, और आगे तुम करो, इट्स योर विश. एटलीस्ट 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए. दोज आर इंटेलिजेंट, 90 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट इन मैथमेटिक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स राइट नाउ. और आफ्टर दैट दोज who are average, average category, they should be doing at least 70 question correct. 70 तुम्हारे करेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट. एंड दोज हु आर बिलो एवरेज, दे शुड बी डूइंग 60 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट. देयर इज नो सच वर्ड एटलीस्ट इन देयर कैटेगरी. आउट ऑफ 120 ना, मैथ्स का 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. देखो, अगर हर बच्चे का अगर एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस आर करेक्ट, सो यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट इजीली. एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस करेक्ट. सो नेक्स्ट थिंग इज how you have to tackle the actually the NDA that maths exam. So it is nothing. You have to work on the easy questions first. Just for a 2 or 3 minutes, just take a overlook about the exam. Work on the easy, see which is easy question for you. तुम किस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे. जस्ट गो फॉर द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन कम टू द एवरेज क्वेश्चंस, कि थोड़े इजी से थोड़े ऊपर हैं. यू हैव टू जस्ट पुट अ स्मॉल हार्ड वर्क एंड यू विल मेक इट आउट. सो तुम्हें उनको उसके बाद एवरेज क्वेश्चन करना है. And if you find that still there is adequate time is remaining with you, you can switch over yourself to the hard questions or difficult question. Difficult question doesn't mean that you can't do it. Difficult question means that they are time consuming actually. NDA paper is not difficult according to JEE mains or other exams, so it is not difficult. So तुम्हें इतना ही करना है कि first easy questions you have to do, then come to your average, then come to difficult. और जिन बच्चों पे ट्रिक्स आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, हाउ टू प्ले विद दी ऑप्शंस, बिकॉज देखो नेगेटिव मार्किंग है और पेपर में तुम्हें नेगेटिव नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है इसको. तो अगर तुम
जितने क्वेश्चन सही करोगे तुम्हारा उतना ही बेनिफिट है। अगर तुम ज्यादा के चक्कर में आधे क्वेश्चन और ज्यादा से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, इट विल पुट यू एट द बिलो एवरेज ओनली इफ यू आर इंटेलिजेंट इन केस देन ऑल्सो। सो क्वेश्चन उतने ही करो, तुम उतने ही क्वेश्चन करो जितने तुम्हें लगे कि ये मेरे सही होंगे, और आगे जिन पे डाउट है उनको तुम ट्राई कर सकते हो, बट नेगेटिव तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आई विल से, देखो मैथ्स का पेपर का क्या सीन होता है कि 40 आउट ऑफ 120 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे लिटरली। तुम ना इफ यू आर रिकैप्चरिंग द फॉर्मूले, तो अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो तुम उनको इजीली जस्ट पुटिंग द फॉर्मूले देन यू विल गेट द वैल्यू। सो वही होता है कि बस तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी को, तुम 40 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूले पूछ लेते हैं यार कभी कभी कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा साइन के इन टर्म्स ऑफ साइन, और sin 2x इन टर्म्स ऑफ 10x में क्या होगा, सीधे फॉर्मूले आते हैं, पूछे भी गए हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिलो एवरेज होंगे, जिनमें तुम थोड़ा सा अगर लगा लो इजी क्वेश्चन में अगर तुम्हें 20 सेकंड लगा है तो उसमें 30 सेकंड और 35 सेकंड इट विल टेक हार्डली। और एक एवरेज क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट भी ले जाते हैं, 1.5 मिनट भी ले जाते हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन बिलो एवरेज 20 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 40 क्वेश्चन तुम्हारे एवरेज होते हैं, और 20 क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफिकल्ट पाएंगे ही पाएंगे तुम्हें। सो ये सीन होता है एनडी का पेपर का। तो तुम्हें अब देख लो इजी देन एवरेज, और टाइम बचे तो डिफिकल्ट पे करना। टोटल टाइमिंग यू हैव अराउंड 2.5 आवर, हाँ 2.5 घंटा होता है तुम्हारे पास। सो बेटर रहेगा क्योंकि पहले घंटे में एटलीस्ट यू शुड बी कवरिंग अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन इन 1 आवर, दैट इजी क्वेश्चन, और विच समटाइम्स तुम्हें पता नहीं चलता। तुम देखो एक फ्लो होता है कि एनडीए का, कि पहले तुमने पहला पेज खोला, तुमने देखा कि भाई इजी क्वेश्चन है, वाओ तुम करने लग गए, तुम्हें 6 के 7वें 8वां इतना डिफिकल्ट आ गया, तुम्हारे पसीने छूट गए, यू आर वेस्टिंग द टाइम। तो तुम्हें ये चीज एनालाइज करनी है, यहाँ पे तुम्हें अपना लॉजिक लगाना है, यू हैव टू पुट योर सेंस देयर कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आई शुड लेफ्ट इट एंड आई विल कम बैक टू इट व्हेन आई विल गेट टाइम। सो नथिंग, पहले इजी करना फिर एवरेज। ओके, ये था एनडीए का मैथ्स का। अब देखो मैथ्स में टेक्निक्स कैसे होती हैं। देखो जिन बच्चों की एक्यूरेसी है, ठीक है, स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है जिन बच्चों की, उन्हें क्या करना है, पहले अच्छे से पूरा इजी सब कुछ पूरा अटेम्प्ट करना है। जिनमें उनको लगा कि भाई डाउट है तो वो ऑप्शन से खेलें कि भाई अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ 30 रखता हूँ, देखो ऐसे मान लो कि भाई कि एक कोई भी इक्वेशन दे रखी है साइन और कॉस की टर्म्स में, तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखता हूँ और 60 रखता हूँ, और वही चीजें उस क्वेश्चन में जो दे रखा है कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो तुमने सपोज किया है, तो नो डाउट अगर तुम उस एंगल को सपोज करते हो और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा। सो यू हैव टू प्ले विद द ऑप्शंस इन केस इफ यू गॉट स्टक। और तुम्हें लगे लेंथी क्वेश्चन, देखो लेंथी क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं, तुम्हें लगे ज्यादा लंबा जाए तो सोचो उसमें कोई टेक्निक होगी। मान लो 2 लाइन आपस में करती है तो ऑब्वियसली अगर तुम एक को दूसरे में पुट करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो यही सीन होता है। जैसे इंटीग्रेशन का होता है कि मान लो एक इंडेफिनेट दे रखा है, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा इस इंटीग्रेशन का, अगर हम करेंगे तो 4 ऑप्शन रहेंगे। अब भाई तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो चारों ऑप्शन को ना इतनी जल्दी सॉल्व कर लोगे कि अगर तुम 4 ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो यूल गेट द इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है, तो तुम वही क्वेश्चन को तुम्हें आगे निकल आएगा, तो इजीली है। तो यही कुछ टेक्निक्स हैं। बाकी देखो अब तुम्हारे पास कितना, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देखो थर्सडे और फ्राइडे तुम्हें 2 काम करने हैं। थर्सडे को कल तुम पूरी मैथ्स के फॉर्मूले, और जो तुम्हें लगे कि भाई मेरे यहाँ पे बेसिक कमजोर है थोड़ा, वो देख लो भाई। फॉर्मूले तुम्हें थोरोली करने हैं भाई, फॉर्मूले नहीं होगे तो तुम्हारा बेसिक्स डगमगाएगा, तुम वहाँ पे घबराओगे, तुम क्वेश्चन गलत करके ही आओगे, और फिर रिजल्ट वॉन्ट बी एक्सपेक्टेड एज यू। ओके, तो आगे तुम्हें करना है। अब आई विल टॉक अबाउट द जीएटी पार्ट। देखो जीएटी का कुछ नहीं होता, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 इंग्लिश के, 50 योर सोशल साइंस और योर जीएस और सोशल साइंस जनरल स्टडीज, और 50 क्वेश्चन योर बिलोंग टू द साइंस बेसिकली। तो तुम्हें करना उसमें कुछ नहीं होता। 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं ना, डोल सर यार, अरे यार डोल सर इज देयर यार, व्हाई यू आर गेटिंग अफ्रेड, डोल सर और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जो भी कोई टीचर होंगे सब अच्छे होंगे, जेनेसिस क्लासेस हैज अ गुड फैसिलिटी। तो तुम्हें ना एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए यार इंग्लिश में। जो अच्छे बच्चे हैं, जो जो अच्छे लिटरली थोरोली प्रैक्टिस करके हैं, देखो जो अच्छे बच्चे हैं वो पेपर क्लियर कर देंगे, बट इट मैटर्स दैट हाउ मच यू आर गेटिंग इन एनडीए, मार्क्स कितने तुम्हारे आ रहे हैं, बिकॉज इट वॉन्ट मेक सेंस है अगर तुम्हें पेपर क्लियर हो गया तुम आगे जाके मेरिट में तुम लटक जाओगे, ये अच्छा नहीं होता ना। सो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो कम से कम 40 क्वेश्चन इंग्लिश के करके आने हैं करेक्ट। ओके, तो उनके लिए क्या है, तुम्हें सर के रूल पढ़ने हैं थोड़े, बस रूल्स दिमाग में दोबारा रिवाइज कर लो, सेंटेंस देख लो जो तुमने क्वेश्चंस देखे हैं, क्या क्या जो अच्छे जो डगमगाए सेंटेंस हैं, लाइक
होते हैं, अब तो मैं भूल गया, सॉरी, बट उन सेंटेंस को तुम देखो एक बार, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं यार एनडीए में छपे छपे। डुल सर ने 5 वो कराए थे इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस, वो 5 के 5 छपे आ गए। सो एक बार तुम ना रिवाइज कर लो, रिवाइज इट थोरोली, इंग्लिश रूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सिनोनिम एंड एंटोनिम देख लो। देखो एंटोनिम सिनोनिम का सीन क्या होता है कि तुम्हें तुक्के मत मारना उनमें। अगर तुम्हें लगा ना सेंस बन रही है सेंटेंस को मिला के, इफ यू फाइंड दैट कि भाई सेंस बन रही है वहां पे, तो तुम जाके उसको करना एक्चुअली। अदरवाइज अगर सेंस नहीं बन रही छोड़ देना उसको, बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम बहुत गलत होते हैं। पैसेज आता है इजी यार, लॉजिक। इंग्लिश का पेपर सबसे आसान होता है। 40 क्वेश्चन तुम्हें 40 क्वेश्चन तुम्हें इंग्लिश में करने ही करने हैं, इंग्लिश में जो सही हो। बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है वो उनके 30 सही होने चाहिए एटलीस्ट। इंग्लिश का पेपर यूपीएससी ऐसे बनाता है कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट शुड बी scoring maximum in English part. At least you should be scoring 120 out of 200. Now I will talk about the science. Yeah, science तो यार, you being a non-medical student, you should be aware about the science. अगर तुम्हें साइंस आनी चाहिए, साइंस में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 20 फिजिक्स के, उसमें से तुम्हारे 15 से ऊपर ठीक होने चाहिए। केमिस्ट्री इतनी आसान होती है यार, कैल्शियम उसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, पूछ लेगा इसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, लाइट ईयर क्या होता है, फिजिक्स का आ जाता है ऐसे। तो तुम्हें एटलीस्ट 15 से ऊपर ही तुम्हें केमिस्ट्री में करने हैं। अरे बात बायोलॉजी की, जो बायो थोड़ा पढ़ के जाते हैं वो 5 तो कर ही देते हैं, जो नहीं पढ़ के आते हैं वो भी 3 तो कर ही आते हैं। तो अगर तुम्हारे साइंस में टॉक अबाउट, तो तुम्हारे अराउंड 35 से ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन सही होने चाहिए साइंस में। और वो बहुत इजी होते हैं, सही में लॉजिक होता है, बस तुम अगर तुम्हें बेसिक्स अच्छे से पढ़े हो। देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक साइंस आती है यार। ओके, अगर मैं बात करूँ अगर जीएस का, देखो जियोग्राफी बहुत इजी होती है, सही बता रहा हूँ, जियोग्राफी बहुत इजी होती है। लाइक सिंपल क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है कि साइक्लोन बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये लिखी बातें हैं, इनको थोड़ा पढ़ लोगे, रिमाइंड कर लोगे तो अच्छा रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा कि इंडिया की कौन सी विंड, लोकल विंड का नाम क्या होता है। तो ऐसे चीजें सिंपल क्वेश्चन तुम्हें आने भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ जर्नल एबिलिटी टेस्ट। तो आगे तुम्हारा आता है भाई हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री का सीन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री कर जाओ, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादा आता है क्वेश्चन। और बाकी मेडिएवल भी ठीक होती है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, पर लेकिन डिफिकल्ट होते हैं, तो अच्छा रहेगा मॉडर्न कर जाओ इस टाइम पे, तो जो जा रहे हैं आगे। बाकी तुम्हारा पॉलिटिक्स बहुत ईजी है, पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, कौन कौन इलेक्ट करता है, इम्पीचमेंट क्या होती है। तो सिंपल क्वेश्चन जो पाथफाइंडर में भी है, थ्योरी पढ़ जाओ। तो तुम्हारे पास देखो, कल तो तुम कर लेना अपना फॉर्मुलेज रिवाइज, और परसों तुम कर लेना अपना पूरा जीएटी रिवाइज। तो यही है। बाकी एनडीए के पेपर में बैठने के बाद देखो, एक तो ये तो सोचना मत ये पेपर क्लियर नहीं होगा, हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर बहुत आसान होता है, बस जहां तुम अटक गए वहीं तुम्हें हार्ड लगता है, ऐसा नहीं होता भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला भी आसान पड़ जाएगा क्या। तो टाइम मैनेजमेंट रखना अच्छे से भाई। देखो टाइम का खेल होता है। दूसरा, प्रेशर मत लेना। तीसरा, चिल मारना पेपर में, क्या ना भाई हो जाएगा, मेहनत कर रखी है, ठीक है, पेपर सभी क्लियर कर देंगे, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी पढ़ते लिखते हैं, तो ये ऑल विल मेक आउट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर द एनडीए on 6th September. Okay, September. Now I'll switch myself to the second section, that is about the SSBs. SSBC. I have a very good experience in SSBs. Total number of SSBs I have given, there are 7 SSBs. 7 attempts I have given out of 7. 3 times I was screened out. 2 in technical entries, 1 in ND entry. And 3 times I was conference out, and 1 time I was recommended. But भाई देखो, मैंने हार तो मानी नहीं, मैं रिकमेंड होने के बाद भी एसएसबी देने गया, इसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। बट स्टिल चांसेस, इफ यू आर गेटिंग द चांसेस ना, यू शुड बी अवेलिंग दैट। पता नहीं किस्मत कहाँ जोर मार जाए, कहावत है ना, कहते हैं भाई किस्मत पता नहीं कब चल जाए। सो सेम थिंग एसएसबी में भाई, जाओ जितना हो सके। और देखो एक बात कह रहा हूँ, जो बच्चे जिनके देखो एनडीए इस बार रिटर्न जिनका क्लियर होता है, अच्छा है, जाओ एसएसबी। अगर एसएसबी में नेगेटिव रिजल्ट आता है, सो डोंट गेट एम्बेरेस होके, बोर्ड्स पे ध्यान देना तभी, उसके बाद ही। बोर्ड्स पे तो पहले भी ध्यान देना चाहिए सभी को एक्चुअली। तो और दो जिनका एनडीए रिटर्न में रह जाते हैं भाई, देखो सब क्लियर करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 3 लाख बच्चे बैठेंगे, 7,000 का रिटर्न होगा, क्या पता तुम सबका हो जाए, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट जिनका नहीं होता, तो भाई वो अपना बोर्ड्स को बिगाड़े ना। और तुम्हें एक और बात सुनी होगी कि TS46 डायरेक्ट एंट्री होते हैं, टेक्निकल एंट्रीज, उसमें अब जेई मेंस पूछते हैं। तो जेई मेंस
जेई में जैसे एनडीए वाले बहुत डरते हैं एक्चुअली द वर्ड से, उनको खौफ लगता है, जेई में इसको ना छोड़ना यार, जेई मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is not about just SSBs or you'll get chance to appear in SSB. It is about your career also apart from the defense. Basically you'll get a good engineering college if you scored good marks. अच्छा engineering college मिलेगा, अच्छी branch मिलेगी, so you'll excel in your life definitely. तो सीन यही होता है. चलो मैं SSB बात करता हूँ. SSB में कौन बच्चा क्लियर करेगा? जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. ओके, मेन क्या है, जिसकी एवरेज है वो क्लियर नहीं करते हैं, बट एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. देखो जिनका वोकल कोड होते हैं ना, कि अपनी जिनको आवाज बहुत कम होती है, जो खोल नहीं पाते, तो भाई वो चीजें प्रैक्टिस से खुल जाती हैं. मिरर के सामने तुम प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो भाई ये चीज खुलेगी. और वो चाहिए भाई, क्लियरिटी चाहिए वर्ड्स में ना. एसएसबी में कम्युनिकेशन स्किल्स यू शुड बी डेवलपिंग. मैं बताता, व्हेन आई वाज इन गुरुकुल ना, आई विल टेल यू, आई वाज नॉट अवेयर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एक्चुअली. तो क्या हुआ कि आई टुक हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स. अपने रूममेट्स के साथ इंग्लिश में बोलता था. मोंटी साहब इज देयर, कर्नल सर इज देयर, दे आर लेजेंड्स इफ विल से. इंग्लिश बोलते थे यार वो हमेशा. सो लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट. तो यही होता है कि इंग्लिश भाई तुम्हें सुधारनी है, कैसे सुधारो वो डिपेंड करता है रूम पर, लेकिन इंग्लिश तो तुम्हें सुधारनी होगी अपनी. इंग्लिश मीन्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन इंग्लिश, इट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस यू हैव. आगे इफ आई टॉक अबाउट द स्क्रीन, पहला दिन होता है ना स्क्रीन का, तो स्क्रीन कैसे होना है? रीजनिंग अच्छी रखना. सबका बहम होता है कि रीजनिंग डजंट मैटर, बट भाई इट मैटर्स. जितनी बार मैं स्क्रीन आउट हुआ, द रीजन इज ओनली दैट रीजनिंग बहुत गंदी थी. बट यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर रीजनिंग. यू शुड बी having a good command on reasoning. Second, your voice, that your narration, your fluency in you should be communicating that confidently. Okay. Third, if I'll talk about your psychology, your ideas, you should be innovative. You're quite innovative from your ideas. You should be होता है ना creative mind. You should be having a creative mind. So होना चाहिए. For that you should be reading. You should develop a reading habit. Like sometimes go for the good things. अच्छे lectures देखो, novels पढ़ो अच्छे, तो बुक्स पढ़ो जो तुम्हारी इमेजिनेशन को पॉजिटिव और अच्छी बनाए. एग्जैक्टली, नोवेल्स. सो अब टॉक अबाउट द साइक. साइक होते हैं, देखो इंडिया में 3 तरह के लोग होते हैं डिफेंस में, कि एक तो बॉर्न ऑफिसर्स होते हैं, एक मेड ऑफिसर्स, और एक होता है जो ऑफिसर नहीं बन सकता. ठीक है. जो बॉर्न ऑफिसर्स होते हैं, यू हैव द एग्जांपल प्रियांशु कश्यप. मेड ऑफिसर्स लाइक मी. और कुछ बच्चे होते हैं जिनके एसएसबी क्लियर नहीं होते, कितने 24 अटेम्प्ट होते हैं, नहीं देखे उनका एसएसबी नहीं क्लियर हो पाता. ठीक है. तो रीजन बीइंग उनकी, देखो साइक होती है ना, साइकोलॉजी. तो साइक सीन का क्या होता है कि साइक जितने तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारी इमेजिनेशन, समटाइम्स जो बॉर्न ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी साइक बहुत अच्छी होती है जन्म से ही, या पता नहीं कैसे करते हैं, उनकी साइक अच्छी होती है. सेकंड, जो मेड ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपनी साइक सुधारनी पड़ती है बाय प्रैक्टिसिंग. यू वॉन्ट बिलीव, एसएसबी से पहले मैंने 250 स्टोरीज लिखी थी और 1000 WAT की प्रैक्टिस करी थी. WAT वर्ड एसोसिएशन. यू विल कम टू नो व्हेन यू गेट कैंप बाय बीजी रेसर एंड अदर फैकल्टीज ऑफ गुरुकुल. सो प्रैक्टिस इतनी कर लो ना कि भाई वहां पे होता है ना कि इमेजिनेशन को भी तुम्हारे अपने आप समझ आ जाएगा, भाई ये बंदा इतना हार्ड वर्किंग है, आई हैव टू गेट हिम इन द साइक, इसको क्लियर कराना ही कराना है. ठीक है. तो साइक बहुत प्रैक्टिस मांगती है, जिनकी साइक अच्छी नहीं है. ठीक है. बहुत प्रैक्टिस करना, लिटरली सोचना, अच्छी पॉजिटिव आइडिया लाओ यार, पॉजिटिवली वर्क करो चीजों पे ना. ठीक है. पॉजिटिव से याद आया कि देखो, एक तो टीचर्स पे विश्वास रखो. ठीक है. और टीचर्स की बुराई ना करो यार कभी, और खासकर जेनेसिस और गुरुकुल जैसे टीचर्स की यार अच्छे टीचर हैं, दे आर ब्रिलियंट एक्चुअली. इतने पॉजिटिव टीचर विद दे मेक अस सो पॉजिटिव एंड इतने पॉजिटिवली पढ़ाते हैं ना, लिटरली दे आर वेरी हेल्पफुल. अभी तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, कोई लगता है यार ये बोरिंग सर है, बहुत धीरे पढ़ाते हैं यार, वो हैं अच्छे, वो ट्रिक्स नहीं बताते, टेक्निक. भाई देखो, सब टीचर पे विश्वास करो यार, टीचर ही होते हैं तो तुम्हें बनाते हैं कुछ ना कुछ. अगला बात होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर. देखो इंटरव्यू का सीन क्या है, इंटरव्यू तुम्हें बस ये देखेगा तुम स्मार्ट हो, तुम देख लॉजिकल दिमाग है तुम्हारे पास. मान लो कि समटाइम्स आई एक्सपीरियंस समटाइम्स द इंटरव्यू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस. पूछ लेगा तुम्हारी हॉबी क्या है, क्या पढ़ते हो, एजुकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, हॉबी, टाइम टेबल वगैरह, बस छोड़ देगा. तो वी आर कंफ्यूज यार, इसने तो करंट अफेयर्स नहीं पूछे यार, ना तो इसने करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज नहीं पूछी, इसने को डिफेंस के बारे में नहीं पूछा, इंटरव्यू कैसा गया.
सो देखो उस केस में क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ कि इंटरव्यू कैसे तुम्हें उलझाता है। मान लो कि तुमने, मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ। सो मान लो कि इंटरव्यू को तुम्हें पूछता है कि भाई व्हाट आर दोज एक्टिविटीज इन विच यू आर इन्वॉल्व एट होम पर्सनली, ठीक है। तो बता देगा सर मैं तो झाड़ू मारता हूँ, मम्मी के साथ सफाई कराता, सर खाना बनाता देता हूँ कभी कभी, सर गार्डनिंग कर देता हूँ, और सर सफाई वगैरह कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दे देता है, ठीक है। और सर मैं तो इनमें व्यस्त रहता हूँ पूरे दिन, ठीक है। तो वो 20 मिनट बाद पूछेगा कि व्हाट इज योर टाइम टेबल एट हॉलीडे। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें हॉलीडे है तो ज्यादातर तुम घर पे रहते हो, तो तुम कहोगे सर हॉलीडे, या सर ऑफ कोर्स हॉलीडे सर, आई एंजॉय अ लॉट, आई वॉच मूवीज and I sing songs and I just roam with my friends, I watch movies। बट तुमने देखा कि तुमने 20 मिनट पहले बताया सर मैं ये काम करता हूँ, कि ये भाई मैं सफाई कराता हूँ, वो कराता हूँ, और तुम 20 मिनट बाद कह रहे हो कि भाई मैं तो घूमता हूँ। तो ये बताओ दिन में एक दिन में तो 24 घंटे होंगे ना, यू हैव ओनली 24 hours इन अ डे। सो अगर तुम वहां पे झाड़ू वाला नहीं बताते और तुम गार्डनिंग वाला नहीं बताते ना, यू वॉन्ट गेट रिकमेंड बाय इंटरिंग ऑफिसर, दिस इज द फैक्ट। और जब, ठीक है, मीन्स नो, इट मीन्स यू हैव टू टेल ट्रुथ, ना ना, इट डजंट मीन यू हैव, देखो सच्चाई बताना, अगर तुम्हें लगे कि यार ये सच्चाई, थोड़ा झूठ बोलना है, स्मार्टली बोलो यार, ठीक है। मान लो मैं बताता हूँ अपनी एसएसबी का, मेरे से पूछता है, उसको पता थी मेरा कॉलेज कहाँ पे है, तो कहता है तुम बस से जाते हो मेट्रो से जाते हो। तो कहता है कि, मैं कहता सर मैं तो बस से जाता हूँ। कहता मेट्रो चलती है वहां तक, तो तुम क्यों नहीं जाते मेट्रो से। मैं कहा सर मेट्रो से क्यों नहीं जाता भाई, असलियत में तो मैं मेट्रो से जाता था। हाँ विद कॉन्फिडेंस, यू शुड बी हैविंग अ स्माइलिंग फेस ऑन योरसेल्फ, ओके। तो मैंने कहा सर मेट्रो से, मैं मेट्रो से जाता था एक्चुअली, मैं मेट्रो से जाता था। मैंने कहा सर बस से जाता हूँ। पूछता क्यों जाते हो बस से, यार मेट्रो चलती है अच्छी खासी। मैं कहा सर देखो बात ऐसी है, बस लेती है 12 मिनट पहुंचाने में, 10 रुपए लेती है, मेट्रो 30 रुपए लेती है, 15 मिनट लगाती है। तो सर कीपिंग द फैक्टर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो एंड माई सेविंग द मनी, सो आई प्रेफर बस। तो ये सर वेरी गुड। तो तुम्हें लॉजिकली यू हैव टू आंसर, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। तो बंदा पूछ रहा है मेरे से, क्यों पूछ रहा है ये चीज, वो तो मेरे अंदर क्या चीज ढूंढना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछता है, हाँ हाउ यू मैनेज योर पॉकेट मनी। जो जो बच्चे पॉकेट मनी मिलते हैं ना, तो वो एंड में एक डालें कि सर पॉकेट मनी मेरा इतना इतना खर्च हो जाता है, सर आखिर में 200 300 या 500 जितने तुम बचा पाते ना, सर आई सेव मनी। तो यू सेव मनी। तो ये तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि तुम कितने मेच्योर इनफ हो कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी मिलता है और उसमें से तुम बचाने की कोशिश करते हो। और ये झूठ भी बोल सकते हो कि सर मैंने पॉकेट मनी बचाया, उससे मैं टिकट करा के आया, मैंने बोला था कि सर मैं टिकट करा के आया वहाँ पे एसएसबी देने उन्हीं पैसों से। तो यू शुड बी वर्किंग ऑन योर स्मार्टनेस इनफ। तो इंटरिंग ऑफिसर का ये होता है, तुम्हें उनको उसको अपनी बातों में फंसाना होता है और इम्प्रेस करना होता है बेसिकली। वंस यू गेट इम्प्रेस्ड बाय यू ना, नन ऑफ so no one is going to stop you from the recommendation। You also have to do well in your psych and GTO also, but I'm telling you, you will be getting a good marks in SSB। So if I'll talk about GTO, देखो GTO होता है रीजनिंग सॉरी लॉजिकल। तुम कितने इफेक्टिवली आइडियाज दे पाते हो, तुम्हारे कितने बंदे सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग पावर, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, और जो तुम बता रहे हो सही है, एग्जीक्यूट सही हो रहा है। देखो हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर गिविंग द आइडियाज एंड इट इज एग्जीक्यूटेबल, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है देन इट इज गुड। जितने तुम्हें नंबर देगा। अगर तुम बता दो आइडिया है, पार्शली वर्केबल है, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, तो बोलो जब तुम्हारे पास आइडिया हो। बताऊंगा टीएस के बारे में, बताऊंगा आई टेल यू। तो जीटीओ का ये है, नॉलेज रखो भाई। और एसएसबी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, साइकिल लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इंटरव्यू में देखो क्वेश्चंस देखो, नेट पे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सर भी कराते हैं। ये पूछो कि ये बंदा मेरे से क्यों पूछ रहा है, इंटरव्यू योर फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा पॉकेट मनी का क्यों पूछ रहा है, मेरे से क्यों पूछ रहा है। कि देखो एक बताता हूँ, एक बच्चा था, हाँ बहुत अच्छा फैक्ट है, ही वाज देयर, जिसकी टीएस इसमें मेरे कोर्स में एयर 1 आई है। उस बंदे का क्या सीन था, उससे पूछा कि बता मुझे कि मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर थंडर हो, मतलब लाइटनिंग हो रही है, तो मुझे वो लाइट कितनी देर में दिखेगी। तो उसने बताया सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना सर, अगर टाइम निकालना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, उसको मीटर में कर लो और जो भी है, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट जो भी होती है 3 × 10⁸। उसमें आता जाएगा, ठीक है वेरी गुड। अब बताओ मैं चौथी फेल हूँ, मुझे समझा कैसे आएगी। तो कुछ बच्चे तो क्या कहते हैं कि सर नैनोमीटर में आएगी, सर नैनोमीटर में कर लेंगे, इतनी होती है, छोटी सी होती है। उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, ही ऐसे उसने चुटकी बजाई 2 बार, कहता सर ऐसे दिखेगी आपको पलक मारते ही। इंटरव्यू कहता बेटा यही आंसर चाहिए था मुझे। तो तुम ये देखो ना कि वो ऐसी चीजें क्यों पूछ रहा है, वो तुम्हारा लॉजिकल सेंस चेक कर रहा है कि तुम सही में दिमाग खोल के बैठा है अंडर प्रेशर ऑफ भी।
तो तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए। आई वॉज इम्प्रेस बाय दैट गाय एक्चुअली, आंसर वॉज वेरी गुड। और अगला तुम्हारा सीन आता है भाई, इम्पोर्टेंट अबाउट द बोर्ड्स। बोर्ड्स का सीन होता है भाई, बोर्ड्स रियली मैटर। I got recommended TS because I get good percentage in maths, physics, chemistry in boards. Then only I get the chance to avail in the SSB, to get chance in SSB. Then I recommend. Okay, अगर मेरा बोर्ड अच्छा नहीं होता, I won't get and I won't be recommend today. ठीक है, तो ये तुम्हें बोर्ड्स अच्छे करने हैं। बोर्ड्स के लिए क्या है यार, तुम्हें जो सर पढ़ा रहे हैं बेसिक्स यार हमेशा क्लियर रखनी चाहिए। अगर तुम्हें ना, तुम एनडी की तैयारी कर रहे हो तुम्हें, लेकिन जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर तुम एक बार ध्यान से अच्छे से सुन लोगे और उसको जाके एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तुम आगे कभी बाद में उसको रिवाइज करोगे, तुम बहुत जल्दी कैप्चर करोगे उस चीज को। भाई हाँ भाई, मुझे बहुत इजीली मुझे चीज समझ आ गई, मैंने ध्यान से पढ़ी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देना, अगर तुमने ध्यान देते हो तो तुम एनडीए के पेपर जो आ रहा है इसमें दिक्कत नहीं होगी। और एक और खास बात, जेई मीन्स वो कर दिया है कंपलसरी कर TS 46 कोर्स से। अभी तो 44 चल रहा है, इसका 45 अगले से। तुम्हारी जो मतलब यंग जनरेशन और कमिंग जनरेशन है और जो अभी एनडी के लिए प्रिपेयर हो रही है, उन बच्चों को मिलेगा मौका TS 46 के लिए। तो जेई मीन्स का ऐसा देखो यार, फिर कहा सर अलावा सर तो थक जाते हैं कह के कि जेई मीन्स की तैयारी कर लो, पर एनडीए वाले क्या होते हैं भाई, कट्टर कठोर भाई, ना एनडीए करना भाई, मैं तो कित के ना जाऊं, एनडीए करेंगे भाई। देखो एनडीए में हर किसी का ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले जब हमारा रिटर्न क्लियर हुआ था, सारे बच्चे स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, रिकमेंड कोई भी नहीं हुआ था। बोर्ड भी ले डूबे, जेई मेंस भी बच्चे ले डूबे। ठीक है, तो बोर्ड अच्छे से करोगे ना, तुम एनसीईआरटी वगैरह करते रहोगे, बेसिक्स क्लियर करते रहोगे, तभी के तभी बोर्ड्स की अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना। और जेई मेंस का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अगर तुम जिसको ज्यादा नहीं पढ़ना और जिसको अच्छे पढ़ना है, देखो जेई मेन का क्या है, तुम अच्छी रैंक लाओगे ना, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर तुम्हें डिफेंस में नहीं हो पाता है, और जेईमेंस में एटलीस्ट तुम्हें 120 स्कोर करना है यार। और जेईमेंस में 120 स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। दीपांशु शर्मा एक तुम्हारा रिकमेंडेड कैंडिडेट है मेरे बैच से, उसने जेईमेंस के लिए किया, ही गॉट अराउंड 120 मार्क्स। उसकी नेवी टेक, एक नेवी टेक एंट्री होती है, मैं बता दूं 3 एंट्री होती है, एनडीए, नेवी टेक और टीएस। ठीक है, अब दोनों नेवी टेक और टीएस दोनों जेईमेंस से कर दी। उसने जेईमेंस क्लियर किया, वो गया एसएसबी के लिए। उस पर एनडीए का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था दोनों बार, लेकिन वो एसएसबी गया टीएस डायरेक्ट एंट्री से। और भाई उस बंदे ने एसएसबी निकाल दिया, वो आज अकेडमी में ही अंडर ट्रेनिंग। तो देख लो जेई मेंस कितना कहाँ से कहाँ घुमा देता है। और पता है हम क्या सोच के आते थे जेई मेंस देने, कि भाई बर्गर खाएंगे बाहर जाके, पार्टी वार्टी करेंगे, बिकॉज वी डोंट, हमें क्या लेना, व्हाट वी हैव टू गो टू डू दैट जेई मेंस। पर ये गलत है यार, लिटरली तुम जब आगे जाओगे ना, तुम चीजों को समझोगे, जेई मेंस वाज वेरी नेसेसरी। तो जेई मेंस के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है भाई, ये बस दिमाग में बन लो। जो बच्चे बोर्ड्स अच्छे से करते हैं ना, उनका जेई मेंस क्लियर हो जाता है। बस उस जेई मेंस से पहले 1 महीने पहले उसके अच्छे से और कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ लो, तो तुम्हारा जेई मेंस क्लियर हो जाता है। टीचर पढ़ाते हैं जेई मेंस का, ये पढ़ लो, समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो, मत करो क्वेश्चन तुम्हें ना करने तो। बट यार जेई मेंस तो तुम्हें करना है, क्लियर करना है। अगर बोर्ड्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना भाई, जेई मेंस तो हो जाएगा। और जेई मेंस में अच्छे से स्कोर लाओगे ना, तो तुम अपनी लाइफ में कभी ऐसे पॉइंट पे नहीं आओगे यार मैं क्या करूं, मेरा तो इसमें एडमिशन ही नहीं हो रहा, व्हाट टू डू। तो देख लो यार, आज की डेट में जेई मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना जो बीटेक के लिए, वो जेई मीन्स मांगते हैं। जस्ट जेई मीन्स, भाई जेई मीन्स दिखाओ, वी डोंट वांट योर परसेंटेज, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट लेट इट गो, हमें बस जेई मीन्स चाहिए। ठीक है, तो जिनको ये डाउट है ना, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एसएसबी के टाइम क्या होता है, स्क्रीनिंग के टाइम होता है, भाई जो कैंप लगेगा तो यू विल गेट टू नो। ओके, तो भाई यू हैव टू वर्कआउट ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में देखो यार, विपिन सर रहे, विशाल सर रहे, जयदीप सर हो गए, आलोक सर हो गए, और कैसे टीचर चाहिए तुम्हें भाई? हमारे लिए तो यार दे वर नॉट लेस देन गॉड एक्चुअली। विपिन सर, अरे भाई क्या ही टीचर हैं यार। और जब पता है हम मोटिवेट नहीं होते थे जेई मेंस के लिए, हमें जब उस टाइम पे हम सबको ये था भाई जेई में नहीं करना, अलावा सर आते थे, ये इतना प्यारा लेक्चर देना होता था उनको मोटिवेशन का। भाई सच्ची बता रहा मैं, सारे बच्चे ना मॉड्यूल उठा के बैठ जाते थे, भाई जेई मेंस करना है, आईआईटी में जाना है, इतना मोटिवेशन करते थे। तो भाई लिटरली कुछ बच्चों पे इफेक्ट भी पड़ता था, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने लगे थे। तो भाई इतने अच्छे टीचर्स हैं, यू गॉट वेरी गुड फैकल्टी, और इतना अच्छा एनवायरमेंट है, तो तुम कैसे जेई मेंस को मना कर सकते हो? कैसे तुम बोर्ड में नंबर नहीं ला सकते? कैसे तुम्हारा रिटर्न क्लियर नहीं होगा? क्या चाहिए भाई? मैं बता रहा, यू वॉन्ट गेट बेटर फैकल्टी, तुम बाहर चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब। इतने केयरिंग टीचर्स। देखो विशाल सर, मैं बताता, मैं स्क्रीन आउट हो गया था फर्स्ट असेसमेंट में,
क्या हुआ यार, डिमोटिवेट था। विशाल सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड्स में अच्छा कर। उन्होंने सारे भाई पूरा सिलेबस हो गया ना, उसके बाद उन्होंने पूरा सिलेबस कराया सर ने। विपिन सर जब जाओ जहाँ चाहो डाउट ले लो यार। वो रात को 10:30 बजे तक हमारे साथ रहते थे। जयदीप सर है यार, कभी कोई कॉन्सेप्ट निकलो, लोग सर इतने यार इतना बढ़िया पढ़ाते हैं यार। अलावा सर कभी कभी आते हैं, वो क्लासेस लेते तब उनसे कुछ पूछ लो। तो सीन ये है भाई, देख टीचर्स पे विश्वास रखो, टीचर्स की मानो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और मेहनत करते जाओ। मेहनत देखो दो तरह की होती है, एक तो मेहनत होती है हवाबाजी वाली कि बंदे दिखाते हैं सर आके बैठ जाऊँ किताब लेके। दूसरा सीन होता है भाई इसको, सर आए कोई आए आई डोंट केयर, बस मुझे पढ़ना है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है, सीख के मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्लास में होते कुछ बच्चे ना कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, सर आएंगे, वार्डन सर आ गए, भाई मैं पढ़ लिया, ठीक है डन, और गए भाई मस्ती स्टार्ट। अरे ना यार, अपने लिए पढ़ो यार। यू शुड बी सेल्फिश फॉर एकेडमिक्स, फॉर योर सेल्फ ओनली, ओके। कि तुम्हें तुम्हारा ही नुकसान होगा। सी जिन बच्चों ने लिटरली दिल से मेहनत करी है, हार्डवर्क करी है, देख उनका एंड रिटर्न तो कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। तो यही सीन होता है कि भाई दिल से मेहनत करो, टीचर्स की मानो, जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो करो। और भाई एक पॉइंट और ऐड कर लो एनडीए वाले, जो कमिंग जनरेशन है एनडीए की, और भाई या तो आईआईटी वाले बच्चों से हेल्प लो या फिर अपना जेई में स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज आगे बहुत दिक्कत आएंगी। अब तो चलो निकल गया हमारा टाइम, जो जिनका 12th कर ली जिन्होंने, बट आगे तुम्हें यार यू हैव टू वर्क आउट ऑन दी एवरीथिंग। ओके, कॉम्पिटिटिव के साथ साथ तुम्हें यार बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है और योर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना, जो एनडीए के हैं यार। देखो ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या सीन होता है कि यू शुड बी फिजिकली फिट, तुम्हें रनिंग वनिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। इतना नहीं कि यू गॉट एग्जॉस्ट कि तुम थक जाओ, हाय यार मैं तो मर गया, मेरे पेड़ ही दुख, मेरे पैर दुख रहा है सर, मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा आज। तो ये भी सेंस नहीं बनाता कोई। तो नॉर्मल फिटनेस। सेकंड, क्लास में ध्यान से सुनो कि भाई क्या चीज है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ध्यान से सुनना चाहिए चीजों को। थर्डली, यू हैव टू वर्क आउट ऑन द बेसिक, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको लगता है सर मैं मेरे अभी कैसे तैयारी स्टार्ट करूं, मैं तो कुछ क्लियर नहीं है, भाई बेसिक सुधारो तुम, फिर क्वेश्चंस करो, यू विल गेट टू नो। अगला है तुम्हारा कि भाई अब जेएमएस को करना है, जेएमएस के लिए भाई तुम एनसीईआरटी से करो, मॉडल वगैरह कर लिया करो, जो जेनेसिस वाले प्रोवाइड करते हैं तुम्हें क्लासेस। क्लासेस अच्छे से लो यार, यू नो। और भी बहुत इजी होता है जेएमएस निकालना, मैंने निकाल दिया था भाई, विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबको नहीं, हर कोई निकाल सकता है एनडीए वाला, ठीक है। तो भाई जेईमेंस के लिए करो। आगे देखो क्या हो गया, बोर्ड्स कवर हो गए, बोर्ड्स में इजी है भाई, बोर्ड्स ध्यान से पढ़ो। लैंग्वेज इज ऑल्सो नेसेसरी, इंग्लिश में भाई जिनको बीएससी करनी होती है ना, उनके लिए इंग्लिश, डीओ में अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, दे नीड इंग्लिश एज अ यू नो, दे नीड 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड यू नो लैंग्वेज। तो इंग्लिश यू हैव टू वर्क आउट थोरोली, और प्रैक्टिस करके जाना पेपर में यार। इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है सभी बच्चों के लिए। ओके, नाउ your about SSB has been finished. Your okay, wish you very all the best for those who are preparing for the written examination again. चल मानना भाई, टेंशन ना लेना, हो जाता है, सबका होता है भाई। मेरा हो गया था जितनी बार गया हूँ मैं इंडिया का पेपर देने। एक बार तो क्या हुआ भाई, देखो मेरे बेसिक्स क्लियर थे एक बार, अभी 17 नवंबर को जिस दिन पेपर था, मैं एसएसबी से हटा, कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज के एग्जाम दिए, फिर 15 दिन बाद मेरा इंडिया का एग्जाम था, मैंने बुक उठाई 15 दिन पहले, सच्चे बता रहा। तब जब मैंने रिवाइज करने लगा ना, वो मैं कहला यार ये तो आता है, लिटरली वो इजी थे क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर थे और हमने प्रैक्टिस कर रखी थी अच्छे वाली। तो तुम ना 20 दिन के अंदर भी तुम एनडीए कर निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क आउट ऑन बेसिक, ये अभी नहीं बाद में भी काम आती है ये चीजें, कॉलेज में भी जाओगे कहीं भी जाओगे, अच्छा अच्छा ही होता है। ओके, नाउ दोज कैंडिडेट हु हैव queries or questions, please start asking. I'll be asking about the relevant questions only. भैया, how to prepare for physical and SSB at home? नहीं नहीं नहीं, not नहीं यार, joining, see about joining is still remaining. I have a medical issue, so I can't join academy this time due to there is a medical issue. Otherwise, I got all India rank 56 in TS, so I can't join academy this time. So I'll be trying for the other entries. This was my private question. Okay, भैया SST के तरीके करने, सॉरी। ओके, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ अच्छा होता है कि भाई देखो वही आई टोल्ड यू, इजी करो, जो आता है वो ही करो, बिना बात टांग नहीं फंसानी चीजों में, ठीक है। यू हैव टू वर्क आउट ऑन दोज थिंग्स यार। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएसटी, जर्नल स्टडीज, देयर बुक्स आर इजी, एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी और बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट्स, यू विल गेट टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएसटी।
टीचर्स हैं इतने अच्छे, वो गाइड करते हैं यार। मनदीप सर है, आई हैव हर्ड, मैंने उनसे कोई पढ़ा नहीं, बट आई हर्ड अबाउट हिम, सो ही इज वेरी नाइस टीचर एक्चुअली। एवरी स्टूडेंट और माय जूनियर्स दे टोल्ड मी अबाउट हिम। तो और कैसे टीचर चाहिए भाई तुमको? अच्छा, the see basically what kind of problem I faced. See, first time I went, the problem of communication skills, second the reasoning, ये तो प्रॉब्लम थी जो बेसिक मुझे आउट कराती थी। नाउ बेसिक अदरवाइज साइकिल माय साइक वाज वीक, so I had did a good command on my psych and I practice करी, so I'll overcome that problem. So basically this is। और हाँ, जीटीओ जो गुरुकुल वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक खास बात है, जीटीओ से मत घबराना। तुम्हारा जैसा जीटीओ ग्राउंड है ना, यू हैव जीटीओ ग्राउंड इन गुरुकुल को क्षेत्र, इट इज बेस्ट, बेस्ट। जीटीओ में तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं है, जीटीओ ऑफिसर विल से भाई या नाइस यार, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब, so don't afraid about the GTO, just work out on the psych and your interviewing officer। हाँ, if I'll talk about the सी, जिनको ये लगता है कि मेरा मेडिकल है, मेरा इशू है, मेरा स्पेक्स है, जस्ट गो थ्रू दी गाइडलाइंस ऑफ द, देखो सब चीज के नोटिफिकेशन आते हैं, टेक्निकल एंट्रीज के, एनडी एंट्री के, नेवी टेक सबके एक होते हैं। तो उसमें ना तुम्हारे मेडिकल ऑप्शन होते हैं, देयर इज अ कॉर्नर अबाउट द मेडिकल्स, उस मेडिकल में तुम्हारा होगा कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, कि तुम्हें आइज का 2.5 होता है तो तुम ले लेंगे। तो एक बार तुम उनको गो थ्रू कर लेना, तुम यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स दे आर एक्चुअली नीडेड फ्रॉम मेडिकल साइड। ओके, at home we are not able to concentrate on studies, it means we are enjoying a lot at home it makes also, because see, we are also taking classes of college but we are concentrated, it is you only who makes the concentration actually। देखो, मम्मा आ रही, मम्मा ओके, मम्मा से कहते यार मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो यार एक बार मम्मा से कहोगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई मैं, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और भाई योगा वगैरह कर लिया करो, ज्यादा ही प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की, अदरवाइज कंसंट्रेशन नहीं बन रहा यार, ये तो मैं बनाना पड़ेगा, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। रीजन कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता, उस चीज को दूर करो। और हाँ देखो, चीजें क्लियर नहीं होती, मेरा पेपर क्लियर नहीं हो, मेरे ये क्लियर नहीं हो, मेरे बेकार नंबर आए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार है, इन सब का रीजन तुम्हें पता है, और तुम ही हो जिनको ओवरकम कर सकते हो। लोगों तो कहते रहेंगे, लोगों से तुम छुपाते रहोगे, बस इधर उधर घूमते रहोगे, बस जिंदगी खराब कर लोगे। जिंदगी खराब नहीं करनी है, तुम्हें वर्कआउट करना है ऑन योर वीक पार्ट। ओके, एसएसबी में ही कहते हैं, जब तुम कॉन्फ्रेंस रिजल्ट आता है ना, तो कहते हैं यू हैव टू वर्क आउट ऑन दोस थिंग इन विच यू आर वीक, एनालाइज योरसेल्फ। यस, एनालाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू वर्क आउट। ओके, एनालाइज करो मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ भाई, उनको ओवरकम करो। और तुम्हें ही पता है, कोई टीचर कोई भगवान नहीं है कि तुम बता बेटा तेरे ये कमजोर है, यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस भाई। ओके, ओनली यार जिसने बेरा है ब्रदर, आई एम ओके। हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स एट होम, वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट गो फॉर द एक यूट्यूब नाम की एक अच्छी चीज होती है, सब बच्चे सुनते हैं पंजाबी गानों के लिए, इंग्लिश गानों के लिए, तो भाई उस चीज को और अच्छा इस्तेमाल करो। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली उनकी वीडियोस देखो। ओके, इंग्लिश में चीजें देखना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश रीडिंग कर लो, और अपने आप से इंग्लिश में बातें करो यार, हाँ मेरा सही है, सही है, सो यू कम टू नो। ऐसे भाई मेरी भी ऐसी सोच रहती है, अपने आप से बात करो भाई, पागल हो जाओ, घर वाले कहेंगे भाई लड़के को दौरे पड़ रहे हैं, डोंट माइंड इट, बट वर्क आउट ऑन योर सेल्फ। ओके, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी देखो, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं ना, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, बेसिकली सर के साथ चलो, जो बेसिक कराने करो, चीजें समझते चलो, प्रैक्टिस करते गए। पता है, सर ने एक बार कंपटीशन रखा था, सर ने कहा था जितने क्वेश्चन कर सको ना उतने करके लाओ भाई, क्लास के बाद। तो मैथ्स के सर थे, विपिन सर ने कहा था, तो भाई हमारा रूम बैठा रात को 9 बजे लेके क्वेश्चन, 2 बजे उठे हम 200 क्वेश्चन करके, लिमिट एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर था उस टाइम पे। तो भाई जितना, और उस चैप्टर को आज तक नहीं बोले भाई हम लोग। तो जितना तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट, तो भाई प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की अभी से ही। और तो जैसा तुम्हें देखो एनडीए का करना है और साथ साथ आईआईटी करना है, तो तुम दोनों चीजें साथ साथ लेके चल सकते हो। बस क्या करना है, अगर तुम मैथ्स हाई लेवल की पढ़ोगे ना, तो तुम्हें एनडीए पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाई लेवल की मैथ पढ़ो, केमिस्ट्री फिजिक्स बेसिक्स एनसीईआरटी, और थोड़ा जो सर आईआईटी वाले जो भी सर आपको कोचिंग देते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो, तो इजी हो जाएगा। यही है। और भाई जनरल साइंस, और अपने आप को देखो, जो बच्चे एनडीए करने हैं उनको अपने आप को मैच्योर बनाओ, कि भाई एक सेंसिबल होता है ना, कि डिसिप्लिन है, समझदार है, लॉजिक रीजन है उसके अंदर। भाई ये बंदा मतलब देखते रह भाई, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना भाई, ही विल गेट रिकमेंड। सो यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर पर्सनैलिटी एक्चुअली, देन ओनली यू कैन मेक आउट इन द एसएसबी।
ठीक है, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है एसएसबी में, कभी काम नहीं आएगी पढ़ाई लिखाई, आएगी तुम्हारी पर्सनैलिटी, हाउ यू आर टैकलिंग द थिंग्स। ओके ओके, विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, it is a nice question that common sense matters and logic matters. Logic, see, common sense, logic is a part of common sense actually if you think. ठीक है, जो लॉजिक होता है ना, वो जैसे मान लो तुमने फट्टा जो ऑब्स्टिकल जीटीओ ग्राउंड, तुम्हें फट्टा बल्ली यहाँ पे फंसानी है, एक कॉमन सेंस होगा, बट जीटीओ विल कंसीडर इट एज अ लॉजिक कि भाई लॉजिक सही है, बट इट विल बी अ कॉमन सेंस फ्रॉम योर साइड। तो ये देख लो भैया, जैसा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके भैया, अगर हाँ, अगर अभी एसएसटी ना पढ़े और इंग्लिश ना पढ़े तो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा भाई, इस साल खाना भी मत खाओ, ठीक है, अगले साल ही खा लेना सारा। तो यही सीन होता है कि भाई खाओ मत, अगले साल खा लेना। जो चीज देखो, अपने ऊपर बर्डन मत लो, प्रेशर वैसे होता है एग्जाम का, एक दिन में सारी खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी ही बन जाएगी। ठीक है, टाइम के साथ चलो यार, बेसिक्स को कवर करते चलो, पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, टेस्ट देते जाओ, इम्प्रूवमेंट लाते जाओ, और टीचर्स का आशीर्वाद लेते जाओ, यू विल मेक इट। हाँ, पाथ फाइंडर बनाने से जेईमेंस की प्रिपरेशन हो सकती है क्या? ना यार, पाथ फाइंडर का लेवल ही क्या है भाई, जेईमेंस की प्रिपरेशन करो, पाथ फाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वांट रीड पाथ फाइंडर इफ यू जस्ट गो थ्रू द जेईमेंस नोट्स। जेईमेंस क्या, मैथ्स यार, जेईमेंस की क्या होती है यार, नथिंग यार, मैथ्स इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा है यार। तो पाथ फाइंडर से नहीं होगा यार, ना, नहीं होगा। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं भाई? स्मार्ट वर्क कम्स योर स्मार्टनेस भाई, स्मार्ट बनो। अब बताया ना मैंने, आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट द पॉकेट मनी, आल्सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट गाय हु वाज देयर इन एसएसबी। तो दीज आर द स्मार्ट आंसर्स, यही स्मार्ट वर्क होते हैं तुम्हारे। स्मार्ट वर्क ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई तुम मान लो कि तुम्हारे पास 20 दिन है, यू हैव टू वर्क ऑन योर एनडी एग्जाम, तो मैथ पूरी रिवाइज करनी है, तो देख लो छोटे चैप्टर कौन से हैं, ठीक है, जो जल्दी निपट जाएंगे, जो तुम्हें इजी लगते हैं, उनको पहले खत्म कर दो, एक एक बोझ हट जाएगा, फिर थोड़े एवरेज को चैप्टर्स पे आओ। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क होता है, हाउ यू एक्चुअली कहते हैं इनको शॉर्टिंग, शॉर्टिंग नहीं तो हाउ यू आर कहते हैं इनको, कि तुम इनको अरेंज कर रहे हो, हाउ यू आर अरेंजिंग दी थिंग्स to get good performance or better result. So that is known as smartness here, according to me. How to prepare for the psych? भाई psych जिनकी अच्छी है, then you need not to prepare, जिनकी गंदी है मेरी तरह थोरोली प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छी 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 बातें देखो, बाकी गाइडेंस will help you out in this. The SSB camps are there ना, that will help you out. Okay sir, I can communicate well but I face problem in works, so please guide. Okay, see, कुछ नहीं होता, गाइड्स, यू हैव टू डू नथिंग, शीशे के आगे खड़े हो जाओ यार और चिल्लाओ, ये खोलो यहाँ से, ये खोलेगा, है ना, बोलते रहो बोलते रहो, आधे घंटे स्पीच देखो, जहाँ तुम्हें फंबलिंग हो वहां भी वो चीज सुधर जाएंगी, लेकिन यू हैव टू वर्क आउट थोरोली। ये चीज बहुत डिफिकल्ट यू फेल फेस इन एसएसबी, तो बहुत दिक्कत आएगी, और तुम्हें डर लगता है, वोकैब्स अच्छे नहीं है, तो तुम भाई ये खोलो, शीशे के आगे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। मैथ्स फॉर जेई मीन्स अच्छा है, करो भाई। SSB matters in SSB, that NCC matters in SSB. Yes, there is a separate column in PIQ form that do you have NCC which wing like this? As NCC matters, it shows that how much you are devoted or dedicated towards defense, because NCC वही लेते हैं जो ज्यादातर इन डिफेंस के प्रति होते हैं। ओके, नाउ वेलकम। 11th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स में शुरू से सब समझ आ रहा था आपको यार, फिजिक्स का समझने का है ही क्या, नथिंग यार, इट इज इजी। बोर्ड्स में 95 आ गए थे मेरे, बिकॉज बेसिक्स पर क्लियर, तो बेसिक्स होता है फिजिक्स, फिजिक्स में लॉजिक्स होते हैं ना, तो भाई जिनका लॉजिकल दिमाग है उनके लिए अच्छी है, जिनका नहीं है वो डेवलप करो भाई, फिजिक्स इजी है, मुश्किल नहीं यार फिजिक्स। हाउ टू स्टार्ट द स्पीच प्रिपरेशन? नथिंग है, जस्ट गो थ्रू द इंटरनेट एंड जस्ट प्रैक्टिस अलॉट। हाउ टू स्टार्ट? बेसिकली नथिंग, कॉन्फिडेंस लाओ यार, कुछ बोलने से पहले यू शुड बी हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हाँ मैं बोल पाऊंगा, मैं डरूंगा तो नहीं, अगर मैं घबरा जाऊंगा यार गलत हो जाए क्या हो जाएगा, 2 दिन गलत होगा, 10 दिन गलत होगा, 1 महीने बाद तो तुम भी सुधर ही जाओगे। तो नथिंग, हाउ टू इम्प्रूव साइक, आई टोल्ड यू, हाउ टू लुक
How can you develop personality that can look attractive? अच्छा, how can you develop the personality? देखो एसएसबी में attractive means your ideas, basically your personality, how you are influencing the group, how you are giving the ideas, how you are presenting yourself, how smart you are, how it doesn't make that your color complex और तुम बहुत गोरे हो, तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा है. हेयर कट should be sensible. I feel I say it should be sensible, but the student, please, you should be वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी. बेसिकली कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में बोलने का, और हेल्पफुल नेचर रखो यार सबके लिए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी. अच्छे अच्छे लोगों को सीखो ना. देखो यार यूट्यूब पे देखो जो अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके लेक्चर्स देखो, हाउ दे हैव बिल्ट देमसेल्फ, सो यू विल गेट टू नो. लीडरशिप क्वालिटी या पार्टिसिपेट इन दी दो, अभी तो नहीं, लेकिन जो जब भी गुरुकुल में डिबेट ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइज करने में मदद करो भाई, या अपॉइंटमेंट बनो. लाइक आई वाज एसीसी, तो ऐसी अपॉइंटमेंट लो. बीसीसी डीसीसी जितनी अपॉइंटमेंट होती है, इनमें देखो भाई रोल, लिटरली यू हैव टू प्ले योर रोल और सिंसियरली एक्चुअली. तो तुम्हें अपना रोल प्ले करना है, तो लीडरशिप अपने अपने धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी. तो भैया भैया अगर मॉर्निंग में जल्दी जागते हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं. नो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आज सोया उठ के पढ़ो यार, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करो, इट विल बी फिट. एसएसबी, एक ने लिखा है एसएसबी सच्चा सच या झूठा सच. एसएसबी में स्मार्ट आंसर्स दे नीड. झूठा और सच्चा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज इफ यू टेल योर फादर्स नेम, ओके, नो प्रॉब्लम. इफ यू टेल ही इज डॉक्टर, ऑल्दो ही इज डन बीएससी, बट ही टोल्ड हिम डॉक्टर, सो ही विल नॉट गो एंड चेक. बट अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगा, तो यू हैव टू आंसर स्मार्टली कि मैंने वहां आंसर क्या दिया था और हाउ आई हैव टू गिव. तो अच्छा रहेगा. सच बोलो अगर यू फील दैट मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, तो डोंट गेट कॉट बाय हिम, जस्ट बी स्मार्ट इनफ. ठीक है, लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट. Bacha, ACC is nothing. It is about, it is an appointment in NDA wing Gurukul Kurukshetra, and as well as in NDA also, National Defense Academy. So it is an appointment. Academic Cadet Captain. So TS entry, I should be telling you about the TS entry. TS entry from TS entry is an entry which needs aggregate of your PCM, physics, chemistry, maths. You should be scoring. देखो अगर तुम्हें MET TS में SSB देना है, तो at least you should be scoring 90% in physics, chemistry, math. Minimum I'm telling you, उसका तुम कभी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. और आगे से तो जेई मेंस भी कर दिया, तो जेई मेंस यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू क्लियर द जेई मेंस. बस तुम्हें क्लियर करो, अच्छे रैंक लाओगे तो अच्छा है, क्लियर करोगे तो भी तुम्हारी एसएसबी आएगी. जैसे नेवी टेक होती है, नेवी टेक में क्या होती है, यू नीड 70% in your 12th PCM and you have to get good rank or in 1,50,000, तो तुम्हारी एसएसबी डायरेक्ट एसएसबी आती है. So these are the two direct SSBs which are permanent commission, and if you are you have the chance, avail it, work hard on your board examination as well as JEE mains. जो कमिंग जनरेशन भाई, JEE mains को ध्यान दे रखना भाई. बी कॉन्फिडेंस ऑन लाइज, हाँ, बी स्मार्ट ऑन लाइज. कॉन्फिडेंस आ जाएगा. जो स्मार्ट होता है उनमें कॉन्फिडेंस होता है. आपका एनटीएससी कैसा था? I appeared in NTSC but not from Gurukul Kurukshetra, from another school. बेकार था. I didn't prepare. यार NTSC, these kind of things never matters in SSB. Matters is how you prepare. जैसे NTSC में लॉजिक होते हैं, रीजनिंग होती है, तो रीजनिंग वहां अच्छी कर देना, तो विल गेट तो तुम्हें अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा. नाइस. यू आर आल्सो Seravat will also make it in SSB. जहां में कुछ करना होता है बट भैया मन नहीं करता, अरे वाह, तो इट मींस यू हैव लैक ऑफ मोटिवेशन इन योरसेल्फ बड़ी. जहां पे तुम्हारा मन का मुझे करना है और मुझे नहीं होता भाई, यहाँ तुम्हारे मोटिवेशन में दिक्कत है और या तुम्हारे एम में दिक्कत है. तो चेंज बोथ. आइदर चेंज योर एम और आइदर बिल्ट अप योर मोटिवेशन. बिकॉज मोटिवेशन, देखो दोस्त ने, उन्होंने बीजे सर ने भी पढ़ाया होगा कि सबसे पहले आता मोटिवेशन. जितना तगड़ा बेस होगा मोटिवेशन का, उतना अच्छे बीच में ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको क्रॉस कर पाओगे, फिर तुम्हारा एम इजीली हो जाएगा. सो मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी टू वर्क ऑन एनीथिंग. और एम अच्छा रखो भाई, एम के लिए भाई वर्क हार्ड करो. पेपर कितनी बार दे सकते हैं? देयर इज अ एज लिमिट गाइस. यू हैव गो थ्रू द नोटिफिकेशंस, यू विल कम टू नो हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अपीयर. जस्ट कंपेयर योर एज विद दैट एंड यू विल गेट टू नो. No, TS SSB is also age limit. Technical entry is also same as criteria of the age, same as NDA.
So the much you get in, NDA chances, the much you'll get in the TS entry. So those who are afraid, नहीं 19.5 होती है. Those who are afraid about the clearing the basics, it means please change your dream. If you are afraid to doing improvement in yourself only, just please change your aim or just change your personality. अपने आप में चेंज करने से कभी ना डरो. You never have to afraid just improving yourself. अपने आप को ग्रूम करने से कभी मत डरो यार. कर्नल सर is this great motivator. So यार motivate him. See his personality. I literally got very affected by his personality. I am very much happy by his personality. कर्नल सर यार, मोंती साहब रहे यार, you should be यार, these are God, for SSB preparation. मोंती साहब कह रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ो तो पढ़ो, बुक्स पढ़ो तो पढ़ो, इंग्लिश बोलो तो बोलो भाई, जो वो बोलते हैं बोलो भाई. इट विल अभी तुम्हें लगेगा यार ये फालतू की बातें करते हैं, इट वॉन्ट मेक सेंस, बट जब तुम मैसेज में जाओगे नहीं फील, जब तुम्हें लगेगा भाई सारे अच्छे इंग्लिश बोल रहे हैं यार, मेरे को तो आती नहीं यार, क्या करूं, इनको इतनी अच्छी नॉलेज है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं. तो ये डिप्रेशन लाएंगे एसएसबी में, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन होएगी. तो भाई देखोगे तुम्हें अपनी सिलेक्शन लेना है तो जो टीचर्स बताते हैं उन चीजों को करो यार. टीचर्स की रिस्पेक्ट करो यार. नेवर डिसरिस्पेक्ट योर टीचर्स. आई हेट लिटरली दोज कैंडिडेट हु डिसरिस्पेक्ट देयर सीनियर्स और एल्डर्स. यार आई नेवर वेंट इन एयरफोर्स एसएसबी ना, आई डोंट नो. नो इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड ना, सो यू विल गेट टू नो. जैसे अगर मैं कहूँ मेरी टीएस में 3 बार ऐसे टीएस जा सकता हूँ, सो एक बार बोर्ड से मार्क्स ले आओ, तो जितनी तुम्हारी एज बचेगी यू विल कम टू यू विल गेट दैट मच चांस. ओके. नहीं एसएसबी में देखो, एसएसबी में ऑफर चेकिंग नहीं होती, बट सेंसिबल रहना, डिसिप्लिन रहना. एसएसबी में ऐसे चेकिंग नहीं होती. एसएसबी में बस व्हाइल ड्यूरिंग है परफॉर्मेंस और एक्टिविटी दे चेक यू, नथिंग. अब बल्कि अच्छा रहना यार. अभी एसएसबी में रिटर्न तो निकालो यार, देन यू विल गो टू एसएसबी ना. No, I am at home right now. I was recommended for the TSNP. Yeah, see, there you'll come to know when you get senior. When you come to know and get SSB guidance program, you will come to know what kind of SSB, what is the difference between Air Force SSB and Army SSB. Basically, nothing. So, guys, if okay, last 2 minutes we got with you. So, अच्छा, अप्रैल वाले की तैयारी शुरू कर. हाँ, जिनका अभी चांस है भाई, देखो तैयारी तो हमेशा कंटिन्यू रखो, तैयारी को कभी मत रोको. जस्ट जब आए जब और जोर लगा दो उस तैयारी में, बस तैयारी को कभी ना छोड़ो ना. आई एम डूइंग बीटेक एंड मैंने बीटेक में एडमिशन ले रखा है ड्यू टू द जेएमएस के लिए जो अच्छी परसेंटेज आई. सो हियर वी एंड्स आवर डे. सो नाउ आई होप यू हैव एंजॉयड. You don't get bored as much, I hope. So wish you very all the best from all of us for this NDA. Do well, chill करना, टेंशन ना लेना भाई, और एनडीए हो जाएगा. जो those are preparing, keep preparing. जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया करो, मोटिवेशन कमी है, मोटिवेशन लो, कम्युनिकेशन करते रहो, और बाकी आगे बहुत हैं. Okay, so this is all about what I have to say. Now I'm handing this to teachers. Sir.